Good morning class 10th, welcome back to my channel, and today we are going to continue the chapter Footprints Without Feet. It is written by H.G. Wells. We have already covered one small part in the previous video. If you have not seen that video, then I will drop the link in the description box. You can go on that and watch the previous video also. So let us just recap whatever we have done earlier, and then we will start the video. Okay. So till now we have read that there was a scientist named Griffin who had discovered that how to make human body invisible, how to make human body transparent, and with that he swallowed some pills, he swallowed some medicine kind of thing, and he became invisible. His body became transparent and he became invisible, and he was walking throughout the streets of London like that only. Okay, so now, and he was also discovered by two boys who saw his footprints in the middle of the street. Okay, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो क्या हुआ क्या कि अब हालांकि जो दो लड़के थे जो उसका पीछा कर रहे थे, उनसे तो उसे छुटकारा मिल गया. कैसे मिला कि उसके फुटप्रिंट्स जो थे, धीरे धीरे पैरों की मिट्टी खत्म होती गई और फुटप्रिंट्स जो थे वो खत्म हो गए. तो लड़कों को कुछ दिख ही नहीं रहा था. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया. लेकिन उसके सारे जो एडवेंचर्स थे, उसकी जो सारी कठिनाइयाँ थी, उसके जो चैलेंजेस थे, वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुए. बल्कि हुआ क्या कि अब क्योंकि अगर उसे इनविजिबल दिखना था तो उसे अपने क्लोथ्स सारे रिमूव करके जाना पड़ता. अब क्योंकि उसने क्लोथ्स रिमूव कर रखे थे तो उसे ठंडी लग रही थी, क्योंकि लंदन में ये मिड विंटर का टाइम था और ही वॉज वेरी 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 मच फीलिंग कोल्ड. बहुत कोल्ड वो फील कर रहा था अपने अंदर. तो अब उसने क्या सोचा कि मैं जो हूँ, मैं एक लंदन के किसी क्लोथ्स के स्टोर में जाता हूँ ताकि मैं वहाँ पे वार्मथ फील कर सकूँ, वहाँ पे थोड़ी मुझे गर्माहट मिल सके. Closing time arrived. As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और अभी क्या हुआ, जैसे ही वो शॉप के अंदर गया तो शॉप की क्लोजिंग टाइम आ गया था. क्लोजिंग टाइम आ गया तो अब वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग टाइम आया तो सब लोग चले गए, तो उसने अपने आप को बहुत बड़े बढ़िया से कपड़े पहन लिए उसने, और वहाँ पे बिना खर्च के उसे खाना भी मिल गया. जो भी उसे मिला उसने अपने आप को बहुत अच्छे से पेट भर के खा लिया. He broke upon boxes and wrappers and fitted himself out of with warm clothes. उसने बॉक्सेस खोल मारे और डब्बे से जो उसे मिला उसने वो खाया, क्योंकि उसको पता था खर्चा तो मुझे करना नहीं है. दुकान के अंदर वो अकेला था. ठीक है. Soon, with shoes and overcoat and a white brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और जल्दी ही शूज़ के साथ, शूज़, ओवरकोट पहनकर और एक हैट पहनकर वो एक बिल्कुल प्रॉपर इंसान की तरह दिखने लगा, क्योंकि उसकी जो ट्रांसपेरेंट बॉडी थी उसके ऊपर क्या आ गया था, उसके ऊपर क्लोथ्स आ गए थे. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meat with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quills. और वो तो पूरे उस मॉल जैसे एरिया में बिल्कुल स्टोर में अकेला ही था, तो उसने रेस्टोरेंट से कोल्ड मीट लिया, वाइन लिया, ठीक है ना, और फिर उसने क्या किया, ग्रोसरी स्टोर से उसने स्वीट्स ली और वाइन ली, खूब बढ़िया उसने लंच किया और फिर जाके क्विल्स के ऊपर सो गया. सॉरी. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगर ग्रिफिन जो था वो सुबह सुबह टाइम से उठ जाता, सबके आने से पहले उठ जाता, तो शायद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन क्या हुआ कि वो सोता रह गया, और जो वहाँ काम करने वाले लोग थे वो वहाँ पे आने लगे. उस स्टोर में जो लोग काम करते थे, दे स्टार्टेड कमिंग.
When he saw a couple of them approaching, he भागना था तो उसे अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़ते। उसने क्या किया, एक एक करके कपड़ों को रिमूव करना शुरू किया और वो वहाँ से भाग निकला। ठीक है, तो एक बार फिर से उसके सारे जो उसने नए कपड़े पहने थे उसको उसे फेंकने पड़े उतार के। तो एक बार फिर से वो सर्दियों में विदाउट क्लोथ्स जो था, ठंडी में भी लंदन की सड़कों पे इनविजिबल घूम रहा था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब क्या हुआ, उसने डिसाइड किया कि अब इस बार मैं कहाँ जाऊँगा, मैं एक थिएटर ग्रुप वाली जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का मिल जाए कि कपड़े तो मुझे मिल ही जाए, लेकिन साथ ही साथ में अपने शोल्डर और हेड के बीच में जो जगह है, क्योंकि वो तो इनविजिबल था। और विजिबिलिटी उसको कैसे मिली, कपड़ों से मिली, क्योंकि एक ग्लास बॉडी, मैंने आपको क्या बताया था कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट भी थी और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ सॉलिड भी थी, मतलब कि बॉडी में सॉलिडिटी भी थी। तो जब वो कपड़े पहनता तो बिल्कुल कपड़े दिखते थे कि हाँ किसी इंसान ने कपड़े पहने हुए हैं, तभी उसकी बॉडी जो है वो लोगों को दिखाई देती थी। हुआ क्या कि अब क्योंकि उसने पूरे यहाँ तक कपड़े पहने थे और उसने हैट पहना हुआ था, तो फिर क्या हुआ कि जो उसका फेस वाला एरिया था वो खाली दिखता था। तो ऐसा लगता था कि इसे हैट पहनी है किसी ने और किसी ने यहाँ पे शोल्डर्स पे कपड़े पहने और बीच का खाली है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मेरे बीच की जो जगह है ये भी भर जाए, मेरी फेस की जो जगह है। तो वो एक थिएटर कंपनी में गया जहाँ पे उसने अपने लिए कॉस्ट्यूम्स देखे और वो गया ड्रूरी लेन जो था वो वहाँ पे थिएटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर था जहाँ पे सारी चीज़ें मिला करती थी। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसे जल्दी ही एक शॉप भी मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। अब उसने कैसा रूप बनाया, ऊपर तो चला गया क्योंकि वो इनविजिबल था, ऊपर से जब आया तो उसने पूरे अपने मुंह पे पट्टियां, जैसे मम्मी की पट्टियां होती है ना, वैसे बांधी हुई थी और एक नकली नाक भी लगाई हुई थी और साइड विस्कर्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा ना बिल्ली के यहाँ पे नोज के पास बाल होते हैं, वो लगाए हुए थे और एक बहुत बड़ी सी हैट पहनी हुई थी उसने। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और फिर क्या हुआ कि उसने कि ताकि उसे लोग कोई पहचान ना पाए, जल्दी से वो वहाँ से निकल जाए, तो उसने शॉपकीपर पर अटैक कर दिया। उसके पास जितने पैसे थे वो सब लेके वहाँ से वो भाग गया। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ सारे वीडियो सारे पार्ट्स को देखिएगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आज एक वीडियो और डाल पाऊँ और हम चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। आप सारी वीडियोस देखिए, पूरी वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको सारी चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, जो पार्ट्स हैं वो आपको कनेक्टेडली समझ में आए। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं आपको समरी भी करा सकती हूँ, बट लेकिन मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको वर्ड्स भी समझ में आते रहें, साथ साथ में चैप्टर की आपको बेसिक नॉलेज जो है वो रहे। तो इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।